Yes, sir. Proceeding with the next part, or we can say that is the next problems. Yesterday we saw that when 2 points are given, or when 2 points is present at the denominator in a Cauchy's integral or a Cauchy's theorem. Now here we are moving with this part, and yesterday we saw the problems that is both the points lies inside the circle or inside the contour or inside the region. But here we have to see that is what happened when one point is outside and the second point is inside, or the first point inside and the second point will be outside. Similarly, what happens when both the points will be outside of the region? So as I mentioned in a first lecture clearly, or in a previous lecture or yesterday's lectures, I clearly mentioned that please remember these 2 points, or I'm writing here. So please note that these 2 points, if Z1 and Z2 both lies outside region or contour, then by Cauchy then by Cauchy, just a second. Then by Cauchy integral or contour integral f of z into dz, which is equal to 0. Please remember these things. And second point, you should remember, if z1 lies inside and z2 lies outside the region, then we have to take integral f of 2z into dz is equal to 0 at z2. जो outside रहेगा वो तो 0 हो जाएगा, and those who will becomes inside or lies inside the circle, that part will becomes integral f1 of z. Instead of f1 we have to write, just a minute, integral f of z into dz equal to 0 at z equal to t0, and integral f of z to dz is equal to, as in a mention, that is 2 pi I upon n minus 1 factorial f raised to n minus 1 of z1 मतलब जो पॉइंट इनसाइड रहेगा उसको आप इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करोगे और उसमें उसका डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूट करोगे. अगर n
1 rahega, then we have to take directly substitute in the function as well, as yesterday we saw that. Now moving ahead with the problems, so that you will understood very well about regarding what actually we have to perform and what are the rules and the regulations in a problems. So moving ahead with the problem, the first example for today's, evaluate closed integral or a counter integral z plus 4 upon z square plus 2z plus 5 into dz, where C is the circle where C is the circle mod of z plus 1 minus I is equal to 2. So I और 1 लिख के ऐसा कोई confusion नहीं होना चाहिए आपको. The question, the problem is a very simple and very easy. We have to perform or we have to apply the solution for this problem. So the solution will be, what will be the solution? So you can see that the solution will be, first I'm going to define this circle. So this is a circle. Here in earlier or in yesterday's numericals, if you remember, that is it was a given mod of z equal to 2. This clearly indicate that a circle whose radius is 2 and the center is at origin 0, 0. But here the circle is clearly mentioned that z plus 1 minus I. So z plus 1 minus I, this indicate that the center is -1, 1. एक चीज हमेशा अच्छी तरह से ध्यान में रखो, ये आप कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हो. सो व्हेनेवर देयर इज अ आई, अगर आई है वो वाई एक्सिस है, बिकॉज इफ यू रिमेंबर और इफ यू अवेयर अबाउट दैट थिंग, that is a complex number is equal to z equal to x plus I y. Complex number means z is equal to x plus iy, where real part is treated here, it is 1, and the imaginary part is treated by I. So you just aware about these things, that is कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है +1 वो x का है, और ये जो I माइनस I दिख रहा है, दिस मीन्स यहाँ पे भी 1 है प्रेजेंट. तो I के साथ जो भी वैल्यू रहता है, that will consider as a y axis point, or that will consider as a y coordinate. So you should aware about these things. So here in a circle, if you remember these things, that is the points are given, I'm just representing here first, that is the circle, z plus 1 minus I is equal to 2 is equal to t, has center that is -1 plus I. -1 plus I. Why -1? If you remember, that is a circle equation. It is the minus g comma minus h, if you remember, that is, or sometime it is f also represented. The center of the circle is minus g comma minus h. So you should remember these things. So if there is plus, then you have to treat as a minus in a center point of view. So that's why I'm just going to write here, that is center will be -1, 1, -1, 1, and radius is equal to 2. Radius is 2. So if you remember, that is a circle equation, then the circle equation is x square plus y square
is equal to a square. This is a standard equation. What is the standard equation of circle? X square plus y square is equal to a square. This means center is 0 comma 0. You just understand this concept. And if this will become the circle like x minus a और y माइनस बी, x माइनस ए एंड y माइनस बी, तो उसका मतलब होता है, अगर मैंने एक सर्कल समझने के लिए यहाँ पे लिखूँ x माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अगर लिखता हूँ यहाँ पे, दिस मीन्स ए स्क्वायर के बजाय यहाँ पे आर स्क्वायर अगर लिखूँ मैं, रेडियस क्योंकि ए ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, तो आर स्क्वायर अगर लिखता हूँ, इसका मतलब सर्कल जो है उसका सेंटर जो है वो 0,0 नहीं है, ये ए और बी होगा. द सेंटर विल बी ए कॉमा बी. तो यू शुड रिमेंबर दिस थिंग्स. अगर यहाँ पे प्लस है, 1 है प्लस, इसका मतलब सेंटर -1 होगा. अगर यहाँ पे माइनस आ है मतलब आई वाला जो टर्म है वो y कोऑर्डिनेट है, तो y यहाँ पे 1 है. So we should consider this part as it is according to this concept. For just understanding point of view, I just explained this thing. Now moving ahead with the next part. So this is equal to z square plus z square plus 2z plus 5. Z square plus 2z plus 5 is equal to 0. पॉइंट फाइंड आउट करना है. जैसे उधर हमने पार्शियल फ्रैक्शन किया था, तो यहाँ पे पॉइंट फाइंड आउट कैसे करेंगे? देखो ड्यूज क्या देगा हमको, इसको हम लोग एक्सपांशन के बेसिस पे करते हैं. तो देखो ये 5 है, अगर मैं इसको करूँ z प्लस 1 दी होल स्क्वायर, तो मुझे क्या मिलेगा? जस्ट वी हैव टू वेरीफाई z प्लस 1 द होल स्क्वायर विल गेट व्हाट, z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1. लेकिन यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? दैट वी हैव टू राइट एज अ 4 equal to 0, so that you will get as a z square, z plus 1 the whole square plus 4, 2 square लिखो या 4 लिखो, that both the things are equal to 0. Now we can make two bracket, रेड कर सकते हैं इस पार्ट के लिए. which two brackets we have to define? That is z plus 1 plus 2i. या फिर इससे पहले मैं एक स्टेप और एक्सप्लेन करूंगा आपको. दिस इज प्लस 4. I can write this part as z plus 1 the whole square plus or minus minus 2i square is equal to 0. Now you should see that is I square is equal to -1, that is the imaginary value. I square is equal to -1, so minus minus क्या हो जाएगा? +1, and 2 square will becomes as it is 4. तो ये स्टेप के बाद मैंने ये स्टेप लिखा है आपके सामने. So you should understand. Now this is a square, this is minus, this is b square. So a square minus b square will becomes a minus b and a plus b. So I'm writing here z plus 1 minus 2i equal to 0, or we can just making this part z plus 1 plus 2i equal to 0. So hope things are clear. a square minus b square, so a minus b यहाँ पे चाहिए तो फिर से एक ब्रैकेट दे दो अगर देना है तो, अदरवाइज नहीं भी दोगे तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि कोई टर्म्स कैंसलेशन में नहीं जाने वाला है, एडिशन में नहीं जाने वाला है. यहाँ पे a square plus a square minus b square, the second term will becomes a plus b. So a as it is and b as it is. सर 2i कैसे आया? I square क्या होता है पता है आपको? -1. -1.
यहाँ पे रख के वेरीफाई करो तो आई स्क्वायर क्या होगा, माइनस वन माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, एंड टू स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर से 4। तो ये इक्वेशन को जस्ट रीअरेंज करके लिखा है माइनस ऑफ टू आई स्क्वायर, ओके सर। दैट इज अ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज। तो इससे ओके हमको सर। ये फॉर्मेट क्या मिल गया है हमको यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया है, एक a माइनस बी कर दिया है और एक a प्लस बी कर दिया है। सो होप थिंग्स आर क्लियर। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट मीन्स नेक्स्ट स्टेप। अभी ये पॉइंट्स हमको मिल सकते हैं एक एक। तो आई एम जस्ट राइटिंग हियर दैट इज z इक्वल टू, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, पहला z इक्वल टू करूंगा तो ये मेरे को क्या मिलेगा, माइनस वन प्लस टू आई, और यहाँ पे z इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, माइनस वन माइनस टू आई। तो ये दो पॉइंट आपको मिल रहे हैं, माइनस वन माइनस टू आई एंड माइनस वन प्लस टू आई। अभी रही बात ये सर्कल जो मैंने ड्रॉ किया था, सर्कल तो ड्रॉ किया था इसी के बेसिस पे जो हमको यहाँ पे दिया था कि सेंटर जो इसका है, दिस सेंटर इज नॉट अ 0,0, दिस सेंटर इज बेसिकली माइनस वन कॉमा वन, माइनस वन कॉमा वन। तो अकॉर्डिंग टू दैट बेसिस आई एम जस्ट डिफाइन हियर। So considering this is as a minus one point, and this point is treating as, यहाँ पे इधर मैं वन कंसिडर करता हूँ, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस माइनस वन, बिकॉज माइनस वन कॉमा वन तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ही नहीं सर्कल, सेकेंड क्वाड्रेंट में ही आपको डिफाइन करना होगा। So this part we define and the radius is clearly as a 2. So this is we can write as a radius 2. तो ये एक सर्कल जस्ट समझने के लिए आपको डिफाइन किया गया है। ये डिफाइन नहीं भी करोगे, आप ड्रॉ नहीं भी करोगे तो भी आपके कोई मार्क्स लॉस नहीं होते हैं या कम नहीं होते हैं। सिर्फ समझने के लिए कि सर्कल में जो वन प्लस वन माइनस आई दिया है इसका सेंटर अपोजिट लेने का हमेशा। अगर इधर प्लस वन है मतलब ये एक्स एक्सिस पे माइनस वन जाएगा, और अगर इधर माइनस सपोज टू आई रहता, माइनस टू आई रहता फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे और ऊपर हमको जाना पड़ता। माइनस टू आई मतलब सपोज यहाँ पे कंसिडर करते तो ये हमारा टू आई हो जाता, तो यहाँ पे टू आता प्लस टू। तो यहाँ पे देखने का अच्छी तरह से, जो प्लस है वो सेंटर में माइनस आएगा और जो माइनस है वो सेंटर में प्लस आता है। ये चीज अच्छी तरह से ध्यान रखें। रेडियस इज, सो दिस इज आवर सर्कल फॉर जस्ट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ वी गॉट 2 पॉइंट्स। अगर अच्छी तरह से देखोगे तो एक पॉइंट हमको मिला है माइनस वन प्लस टू आई, और दूसरा पॉइंट मिला है माइनस वन माइनस टू आई। एक चीज हमेशा याद रखने का, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के जो भी पॉइंट्स मिलेंगे वो डिनोमिनेटर से मिलेंगे। न्यूमरेटर को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करने का पॉइंट्स वगैरह फाइंड आउट करने के लिए, अदरवाइज इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, फिर आएगा ही नहीं, आंसर ही नहीं आएगा। सो मूविंग अहेड द नेक्स्ट पार्ट। अभी हमको चेक करना है दिस पॉइंट्स लाइज इनसाइड द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल, ये पॉइंट्स इनसाइड हैं या आउटसाइड हैं। तो अगर आप अच्छी तरह से यहाँ पे देखोगे, ये सर्कल आपके सामने है, तो मैं एक एक पॉइंट को इंट्रोड्यूस करता हूँ। जैसे फर्स्ट पॉइंट को, तो द पॉइंट z इक्वल टू माइनस वन प्लस टू आई, माइनस वन प्लस टू आई। इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे आपके सामने क्या था, वन माइनस आई, तो सेंटर क्या हमने लिखा था, माइनस वन कॉमा वन। तो इसका मतलब यहाँ पे सेंटर तुम्हारा क्या होगा, या पॉइंट्स क्या हो जाएंगे बताओ जल्दी से। सो यू विल गेटिंग माइनस वन है तो क्या होएगा ये, दैट विल हैव टू ट्रीट एज अ z इक्वल टू लिख दिया हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो इक्वल नहीं था, इसके लिए बाद में जब इक्वल के साइड हमने जाके लिखा था तो माइनस, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखेंगे माइनस वन एंड टू। तो पॉइंट्स आपको क्या मिल रहे हैं, माइनस वन एंड टू। अब यहाँ पे चेक करते हैं माइनस वन और टू पॉइंट सर्कल के अंदर है क्या। तो माइनस वन मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पे, तो माइनस वन एक्स एक्सिस पे यस, ये पॉइंट अंदर ही प्रेजेंट है। और वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, टू, तो ऑब्वियसली इट इज, अगर यहाँ पे भी मैं, ये रेडियस ही है मेरा, तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए आपके लिए। अगर यहाँ पे भी मैं ऐसा जाऊँ
तो ये भी पॉइंट मेरा क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, बिकॉज रेडियस तो कोई भी कोने में, अगर इधर जाऊंगा तो मेरा 2 रहेगा, अगर इधर भी आऊं तो मेरा 2 रहेगा, कहीं पे भी जाऊंगा तो आई विल गेट ओनली 2 ओनली। सो होप दिस थिंग्स आर क्लियर कि -1 और 2 जो है ये यहाँ पे इनसाइड है। सो दैट इज आई एम राइटिंग दैट इज लाइज inside the circle, inside the circle। अब सेकेंड पॉइंट के लिए आते हैं हम लोग, z इक्वल टू एंड पॉइंट z इक्वल टू सेकेंड पॉइंट -1 -2i, this implies what, or that is -1 -2। अभी -1 तो प्रेजेंट है, अच्छी तरह से देखोगे तो -1 इज लाइज इनसाइड द सर्कल, बट -2 इज नॉट लाइज इनसाइड द सर्कल, क्योंकि -2 नहीं है यहाँ पे। सो यू कैन जस्ट सी दैट, सो आई हैव टू राइट दिस पार्ट एज that is lies outside the circle। So as I mentioned earlier, that is whenever point lies outside the circle, मतलब क्या होता है उसका इंटीग्रल f of z into dz क्या हो जाएगा, 0। And if the points lies inside the circle, then their value we have to calculate at whatever the points is given, or whatever the point we calculated। So by Cauchy's formula, I'm just writing here, by Cauchy's formula, by Cauchy's formula, integral or contour integral z plus 4 upon, the question was given z square plus 2z plus 5 into dz is equal to तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम लोग इस पार्ट को। So we'll get the result, what we'll getting according to this point, we'll getting the result as what is our f of z, z plus 4। So z plus 4 पे अगर ये पॉइंट हम सब्स्टिट्यूट करते हैं at z equal to which point lies inside the circle, -1 plus 2i, so we'll getting what, तो यहाँ पे हम लोग को लेकिन थोड़ा सा अलग रिजल्ट करना है, थोड़ा सा अलग रिजल्ट है, ये चीज याद रखना है इस प्रॉब्लम में। सो क्लोज इंटीग्रल z plus 4 upon z plus 4 upon z square plus 2z plus 5, इसका हमने दो फैक्टर बनाया था, z square plus 4 upon z square plus 2z plus 5 का हमने दो फैक्टर बनाया था, एक फैक्टर था z plus 1 minus 2i और एक फैक्टर था z plus 1 plus 2i। तो यहाँ पे ये वर्क थोड़ा सा आपको करना है कि जो पॉइंट, यू कैन सी दैट, जो पॉइंट इनसाइड है या जो पॉइंट पे आप कैलकुलेट कर, देखो इस पे तो रिजल्ट आपको कैलकुलेट ही करना है, ये तो आउटसाइड चले गया तो इससे कुछ मतलब नहीं है, ये पॉइंट पे नहीं कैलकुलेट, तो पॉइंट किस पे कैलकुलेट कर रहे हो, ये वैल्यू पे, मीन z इक्वल टू -1 प्लस 2i, अगर ये अंदर आ जाएगा तो क्या होएगा, z प्लस 1 माइनस 2i, ये पॉइंट आपको मिलेगा। तो इसके पहले फैक्टर यहाँ पे लिख देने का सिंपल वे से, क्योंकि बुक्स वगैरह में डिवाइड वगैरह करने के लिए दिखाया है, बट आपको एकदम सिंपल बता रहा हूँ, z प्लस, दोनों फैक्टर आप लिखोगे z प्लस 1
माइनस 2i z प्लस 1 प्लस 2i, ये दोनों हमने लिख दिया इंटू डी जेड। अब इसमें किस पॉइंट पे आप कैलकुलेट कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो सेकंड पे तो कैलकुलेट करने नहीं करना है आपको, सेकंड पे ही कैलकुलेट करना है। तो यू आर कैलकुलेटिंग वेयर, ऐसा लिखने का, वेयर z0 is equal to which point, -1 प्लस 2i, -1 प्लस 2i। तो जो पॉइंट पे आप कैलकुलेट कर रहे हो वो फैक्टर आप इधर से रिमूव कर दोगे, वो फैक्टर आप यहाँ से क्या कर दोगे, कंप्लीटली रिमूव कर दोगे वो फैक्टर को। अब वो फैक्टर को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, द ओनली थिंग यू हैव टू अप्लाई इज व्हाट, क्या करोगे उस फैक्टर को रिमूव करने के लिए, यू हैव टू अप्लाई, और आई एम जस्ट राइटिंग दिस पार्ट एज दैट इज इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल z प्लस 4 अपॉन z स्क्वायर प्लस 2z plus 5 into dz, which is equal to, this whole equal to f of z upon f of z, स्टेप में और लिख रहा हूँ, f of z upon close integral as it is z plus 1 plus 1 minus 2i। ये थोड़ा याद रखो अच्छी तरह से, ये इस सम के लिए जहाँ पे भी जो पॉइंट आएगा उस पे लिए हम लिखेंगे, एट z0 is equal to -1 plus 2i, -1 plus 2i। So we have to find out here this result. सर एक और चीज फॉर्मूला का जो सब्स्टिट्यूशन दिया था ना वो थोड़ा सा बता दो थोड़ा। मैं आ रहा हूँ, एक मिनट, अभी पूरा सम नहीं हुआ है हमारा, एक मिनट, एक खत्म होएगा फिर देन आई विल अगेन एक्सप्लेन, और उसमें मैं फिर से आपको बताऊंगा, जस्ट वेट। ये एक सम अगर अच्छी तरह से समझता है ना तो बाकी सभी में दिक्कत नहीं आता है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है इसलिए। सो दैट इज इक्वल टू आवर दिस पार्ट इंटीग्रल, और यही इक्वल टू फाइनली जाता है आपका 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ जेड जीरो, 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ जेड जीरो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन और दूंगा, मतलब इस चीज़ के, जैसे ये पार्ट हम लोग तो लिख दिया z प्लस 1 माइनस 2 है, अगर देखोगे तो यही पार्ट है आपका z, मतलब यही पार्ट है। मतलब कहने का एक ही सिंपल सा लॉजिक है कि आप किसको एलिमिनेट कर दिए हो यहाँ से, एफ ऑफ जेड एज इट इज, यहाँ से अगर एलिमिनेट देखोगे तो ये पार्ट आपका पूरी तरह से एलिमिनेट हो गया है, पूरी तरह से एलिमिनेट हो गया है। इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 2 पाई आई इंटीग्रल इंटू इंटीग्रल ऑफ, और इंटीग्रल नहीं लिखते हैं डायरेक्टली लिखते हैं 2 पाई इंटू एफ ऑफ z0। ये तो फॉर्मेलिटीज है, इसके लिए कोई वो नहीं है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्ट, आपको बताने के लिए ये मैं बताना चाहता था कि आप डायरेक्ट ये स्टेप के बाद ऐसा ये लिख सकते हो, z प्लस 4 अपॉन z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 5 इंटू डी जेड, दैट contour integral is equal to integral z plus 4 upon z plus 4 upon z plus 1 minus 2i into dz, into dz, sorry, z plus 1 प्लस 2i। कहने का मतलब ये था, ये जो एक्सप्लेनेशन मैं दिया था कि जो भी z0 पॉइंट पे आप इनसाइड आ रहा है, मैंने तो यहाँ पे क्या किया था, अगर अच्छी तरह से देखोगे आप
थोड़ा सा। तो यही हमारा फंक्शन था z² प्लस 4, ये हमारा मेन न्यूमरेटर था। z² प्लस 2z प्लस 5 से हमने 2 पॉइंट फाइंड आउट किए थे, वो दोनों पॉइंट जैसे फाइंड आउट किया फैक्टराइज किए वो मैंने लिखा था। ये इसके बाद एक स्टेटमेंट हमेशा याद रखने का, ये सब अगर नहीं याद रखना है कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके ऊपर है। खाली एक चीज हमेशा याद रखने का कि जो भी यहाँ पे आंसर रहेगा वो 2 पाई आई से मल्टीप्लाई रहेगा। तो ये कॉचीज का रूल है कि 2 पाई आई बगैर ये काम नहीं चल सकता है, तो 2 पाई आई से आप मल्टीप्लाई करोगे ही। अब यहाँ पे रही बात इस चीज की कि मैंने जैसे आपको कहा कि ये सब स्टेटमेंट वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। आपने मेन फंक्शन लिया, आपने इसके 2 फैक्टर बनाए, वो फैक्टर लिखे। जो इनसाइड है उसको यहाँ से डिनोमिनेटर से गायब कर दोगे, जो इनसाइड है उसको यहाँ से डिनोमिनेटर से गायब कर दोगे। वही फॉर्मूले में मैंने लिखा है कि f ऑफ z को डिवाइड करोगे किससे, जो पॉइंट इनसाइड है उससे। तो जब डिवाइड करोगे तो यही पॉइंट आपका एलिमिनेट होगा, दूसरा कोई पॉइंट एलिमिनेट नहीं होने वाला है। ये पॉइंट तो डिवाइड में कैंसलेशन नहीं जाने वाला है, सिर्फ यही पॉइंट एक कैंसलेशन में आपका जाएगा। तो जो पॉइंट पे आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो वो फैक्टर को आप डिनोमिनेटर से एलिमिनेट कर दोगे, निकाल दोगे। और वो डिनोमिनेटर से निकालने के बाद आप क्या बचेगा, z प्लस 4, ये पॉइंट आपका इनसाइड था। अगर z इक्वल टू करोगे तो ये क्या होएगा, -1 प्लस 2i, ये पॉइंट आपका था इनसाइड। तो पॉइंट ये फैक्टर आप निकाल दिए यहाँ से, तो क्या बचा, z प्लस 4 अपॉन z प्लस 1 प्लस 2i। लेकिन कौन से पॉइंट पे इनसाइड है वो पॉइंट आपको यहाँ पे रखना है, तो जाके आपका रिजल्ट आएगा 2 पाई आई। इंटीग्रेशन वगैरह नहीं करना है, नहीं तो बहुत बार एग्जाम में आप इंटीग्रेशन करते बैठ जाते हो। इनटू यहाँ पे z का वैल्यू क्या है, -1 प्लस 2i प्लस 4 अपॉन z प्लस 1 प्लस 2i। तो z का वैल्यू क्या है, -1 प्लस 2i प्लस 1 प्लस 2i, ये आपको मिल रहा है। यहाँ पे देखोगे तो -1 और +1 कैंसलेशन में चले जाता है। न्यूमरेटर में अगर अच्छी तरह से आप देखोगे तो 4 - 1 दैट इज 3 हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2 पाई आई इंटू 3 प्लस 2i। हमेशा रियल पार्ट को आगे की लिखने की आदत रखना। 3 प्लस 2i अपॉन 4i, 2i प्लस 2i इज 4i। अब यहाँ पे फर्दर कैंसलेशन आप कर सकते हो, ये आई गेट कैंसल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो फाइनली एट द एंड आपको क्या मिलेगा, ये 2 को मैं बाहर निकाल दिया तो क्या मिलेगा, पाई बाई 2 इंटू 3 प्लस 2i, और ये आपका फाइनल रिजल्ट आता है। अब फिर से मैं एक बार बताता हूँ इस सब में थोड़ा सा अलगपन क्या था या अलग चीज़ क्या था। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है अभी तक उसी तरह हमने सबसे पहले क्वेश्चंस को देखा। क्वेश्चन को प्रॉपरली कौन सा फॉर्मेट है वो देखना है आपको। तो z प्लस 1 माइनस आई दिया है इक्वल टू 2, मतलब रेडियस 2 है, और फिर z के साथ अगर कोई भी वैल्यू नहीं है मतलब सेंटर 0 0 है। लेकिन यहाँ पे z के साथ एक +1 है एक -1 है, तो जो भी वैल्यू आपको दिया जाएगा दैट मीन्स उसका अपोजिट आपका सेंटर होगा। अगर +1 है मतलब -1 और -1 आपका सेंटर हो गया, और रेडियस बाय डिफॉल्ट जो इक्वल रहेगा वो दैट इज इक्वल टू 2। सो दिस इज योर रेडियस और सेंटर का कॉन्सेप्ट हो गया। डिनोमिनेटर जो भी इस टाइप के सम्स रहेंगे आपके कॉचीज के, उसमें डिनोमिनेटर से आपको पॉइंट्स फाइंड आउट करना है। तो z² प्लस 2z प्लस 5 को हमने क्या किया, यहाँ पे फैक्टराइज किया। पहले a प्लस बी द होल स्क्वायर फॉर्मुलाइज किया, तो ये पार्ट हमको मिला। फिर हम इसके 2 फैक्टर हमको बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन ही मैंने पहले ही आपको बताया है कि एक पॉइंट इनसाइड हो सकता है और एक पॉइंट आउटसाइड हो सकता है, या हो सकता है दोनों पॉइंट इनसाइड रहें, या हो सकता है दोनों पॉइंट आउटसाइड रहें, ऐसा भी हो सकता है। इट्स अप टू यू। तो आपको सब पहला चीज है 2 पॉइंट बनेंगे। क्यों 2 पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन में ही z² दिया है, इसका मतलब इसका 2 फैक्टर आपको आना चाहिए निकालने। तो ये प्रॉपर फैक्टर है वो किया है, यहाँ पे i को इंट्रोड्यूस किया है बिकॉज i² -1 होगा। अगर उस बेसिस पे लिखूंगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। And then we applied that is a² minus b² वाला rule. a² minus b² is equal to what, a minus b into a plus b, and according to that we define that is a minus b वाला एक पार्ट and a plus b वाला एक पार्ट, जिससे हमको 2 इक्वेशन दो वैल्यूज मिल गए, 2 रूट्स मिल गए। दोनों रूट्स को हमने पॉइंट्स में कन्वर्ट किया,
पॉइंट्स में किस तरह कन्वर्ट करते हैं ये आपको आना चाहिए। ये नहीं लिखते हो आप डायरेक्टली, इसके बाद डायरेक्ट आप अगर ये पॉइंट लिखते हो कि -1,2 यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब पॉइंट जब लिखोगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है मतलब पॉइंट में लिखोगे तो प्लस लिखोगे क्योंकि इक्वल पे जाओगे आप। तो -1,2 तो देखोगे पॉइंट तो -1,2 जो है इनसाइड ऑफ द सर्कल है। सेकेंड पॉइंट आपने देखा -1, -2 तो वो लाइज आउटसाइड द सर्कल करता है। एक पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट तो इनसाइड है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट आपके लिए आउटसाइड चले जाता है, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट पे जब आप आओगे तो यहाँ नीचे कहीं पे आपको -2 मिलेगा, यहाँ कहीं नीचे आपको मिलेगा और वो सर्कल कवर नहीं कर रहा है, तो इसके लिए वो क्या हो जा रहा है, आउटसाइड दी सर्कल पे आपके लिए चले जाता है। तो फिर इसके बाद मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आप पहले सबसे पहले आदत लिखो कि आप फंक्शन पूरा लिख दिए। फंक्शन पूरा लिखने के बाद ये स्टेटमेंट अच्छी तरह से सुनो समझो कि जो पॉइंट पे इनसाइड है या जो पॉइंट इनसाइड है वो पॉइंट पे वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये पहला माइंड में सेट। जो पॉइंट आउटसाइड है उसको डायरेक्टली हम लिख देंगे कि इट लाइज आउटसाइड द सर्कल, देयरफॉर इंटीग्रल f ऑफ z इनटू dz इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, और नहीं भी अगर लिखना भूल भी गए फॉर एग्जांपल आप, तो भी आपके मार्क्स यहाँ पे नहीं कट होते हैं, क्योंकि ये पढ़ाया जाता है कि इंटीग्रल f ऑफ z इंटू dz इक्वल टू 0, क्योंकि वो आउटसाइड हो गया। आउटसाइड हो गया तो उसका कुछ मतलब ही नहीं। फिर मैंने यहाँ पे जो पार्ट लिखा है इसके 2 फैक्टर किए थे, वही दोनों फैक्टर मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें क्वेश्चन अराइज हो जाता है, ये सब जो कंफ्यूजन के लिए ऐसा हो सकता है, थोड़ा कंफ्यूजन जनरेट हो, ये सब लिखा हूँ मैं, बट ये तुम्हारे सिलेबस का हिस्सा है समझने के लिए, इसलिए लिखा था मैंने। तो उसके बाद यहाँ पे ध्यान मेरे देखने का अच्छी तरह से, डिनोमिनेटर के जो दोनों फैक्टर हैं इसमें से कौन सा इनसाइड वाला है, इतना तो आप पहचान सकते हो। तो देखोगे तो ये पार्ट आपका इनसाइड वाला है, तो उसको छोड़ देने का, उसको नहीं लिखने का, नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट यहाँ पे आ जाने का, उसके बाद ये स्टेप में आ जाने का डायरेक्टली, इसको नहीं लिखने का क्योंकि ये इनसाइड है, इसी पे हमको वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ये पॉइंट हम लोग को ये कोऑर्डिनेट मतलब फैक्टराइज वाला वैल्यू हमको लेने का मतलब नहीं, क्योंकि उसको हम डिवाइड कर ले रहते हैं। तो ये सब इतना लिख के डिवाइड वगैरह दिखाने का जरूरत नहीं है। जिस पे फाइंड आउट कर रहे हो वो फैक्टर को निकाल दिए हमने, डायरेक्ट हमको ये फैक्टर मिल जाता है। कॉचीज फॉर्मूले से डायरेक्टली हम लोग को 2πi इंटू दैट f ऑफ 0 आ जाता है। तो z+4, तो न्यूमरेटर में कोई चेंजेस नहीं होगा। डिनोमिनेटर में से जो फैक्टर पे वैल्यू निकाल रहे हैं वो फैक्टर नहीं लिखना है, सिर्फ दूसरा फैक्टर यहाँ पे लिख दिए। और एट द एंड z का वैल्यू जो आप जो फैक्टर पे जो पॉइंट पे वैल्यू निकाल रहे हो वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, सिंप्लीफाई कर दो और रिजल्ट कैलकुलेट कर दो, और एट द एंड आपको यहाँ पे ये रिजल्ट मिल जाता है। नाउ एनीवन हैविंग एनी डाउट regarding this problem, so please ask on your mic and ask a question. If you are not using a mic or earphone, then you can write in a chat box. I will explain again. Anyone? सर 2πi इंटू एफ ऑफ एक्स 0 कैसे आया? हाँ, दिस इज एक्चुअली फॉर्मूला। अब कल का अगर आप प्रॉब्लम देखोगे, कल के प्रॉब्लम में भी हमने वही किया था, 2πi, कल का प्रॉब्लम वही था 2πi इंटू जो हमारा अभी या इससे पहले वाला जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, आपको ध्यान में होगा, कॉचीज का कहाँ गया, स्टार्ट 2πi अपॉन n-1 फैक्टोरियल f रेज टू n-1 z1, ऐसा लिखा था मैंने। तो वही चीज हमारे लिए यहाँ पे तो हमको डिफरेंशिएट करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनसाइड आउटसाइड है। जब दोनों पॉइंट इनसाइड रहते थे तो हम लोग डेरिवेटिव करते थे या फिर ये करते थे, बट यहाँ पे क्या पार्ट है कि एक इनसाइड एक आउटसाइड है, तो फॉर्मूला हमने ये यूज नहीं किया है। यहाँ अगर लिखने को चाहो तो लिख सकते हो आप 2πi, तो एज इट इज रहेगा, और डायरेक्टली आप f ऑफ z ऑफ 0 रखोगे। z0 मतलब जो पॉइंट पे आप वैल्यू निकाले हो, यही चीज आप यूज करते हो। कॉचीज का जितने भी फॉर्मूले हैं आपके सिलेबस में, सब में 2πi से मल्टीप्लाई करना ही है। दिस इज अ मेन थिंग, बाकी यही खाली चेंजेस होते चलेगा आपका। ओके सर। एनीवन मोर डाउट? सर यस बोलो।
एफ ऑफ जेड जीरो में ये जेड+4 और डिवाइड बाय Z+2i डिनोमिनेट कैसे किया? कौन सा? ये हाँ सर। मैंने अभी वही चीज एक्सप्लेन की आपको, इसके दो फैक्टर आए वो तो समझ में आया। हाँ हाँ हाँ, ये चीज आप दिमाग से निकाल दो, ये चीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। मेरा जो हाँ। स्टेटमेंट है वो चीज आप अच्छी तरह से दिमाग में रखना। यहाँ पे कौन पॉइंट इनसाइड है मेरे को बताओ। इनसाइड सर Z+1 -2 है। बराबर। तो जो हाँ। इनसाइड रहता है मतलब उसी को, उसी के पॉइंट को यूज करने वाले हो आप। ओके। बराबर है? यस। उसी के पॉइंट को यूज करने वाले हो। तो अगर मैं ये पॉइंट को यहाँ से निकालूंगा नहीं, ये पॉइंट अगर यहाँ से नहीं निकलेगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा एंड नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि z इक्वल, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूंगा -1 + 2i इधर, ये मेरा क्या हो जाएगा पूरा ब्रैकेट जीरो, जीरो। एंड जीरो हाँ। इनटू एनीथिंग, जीरो। and anything upon zero that is not defined, 1। not defined, यस सॉरी सर। not defined। तो क्या होगा? तो ये चीज हमेशा स्टेटमेंट याद रखने का कि जो पॉइंट्स पे हम लोग वैल्यू निकाल रहे थे, मतलब यहाँ पे जो फैक्टर है जिसका पॉइंट इनसाइड आया है, तो यस ये सर। फैक्टर, तो उसको सीधा गायब कर देना, उसको सीधा आउट कर देने। ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, नहीं तो ये पूरा लिख के डिवाइड करके दिखाओ, ये सब झंझट रखने का नहीं। जो पॉइंट पे वैल्यू आ रहा है उसको सीधा एलिमिनेट कर दो वहां से, तो ये पॉइंट आपका सीधा एलिमिनेट होगा। तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ क्या, Z+4 अपॉन Z+1 + 2i, और डायरेक्टली ये स्टेप होगा। और कॉचीज का कोई भी फॉर्मूला यूज करोगे, आगे एक चैप्टर पढ़ोगे कॉचीज रेसिड्यू, तो उसमें भी कॉचीज रेसिड्यू जब करोगे तो 2πi से आपको मल्टीप्लाई करना ही करना है। कॉचीज वर्ड आया है मतलब 2πi से मल्टीप्लीकेशन आना ही आना है इधर। तो 2πi इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल है Z+4 अपॉन Z+1 + 2i, यही पार्ट आपको मिल गया। आया समझ में इतना पार्ट? ये क्यों Yes, मैंने sir. एलिमिनेट किया? क्योंकि इसी पे मेरे को पॉइंट पे वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसके लिए ये मैं एलिमिनेट कर देता हूँ यहाँ से ये फैक्टर। तो एलिमिनेट करने के बाद फिर सिर्फ z इक्वल टू यहाँ पे लिख देता हूँ समझने के लिए, एट z इक्वल टू हमने क्या रखा है, -1 + 2i। यस सर। ठीक है, और उसके बाद सिंप्लीफाई कर दिया। ओके। एनीवन मोर डाउट रिगार्डिंग दिस? I'm just sharing the attendance. Please fill this attendance right now. उसके ऊपर और 2-3 न्यूमेरिकल हम लोग लेंगे, आज नहीं और नेक्स्ट लेक्चर में, so that this thing will be cover। ये जो पार्ट जो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, ये लास्ट पार्ट है कॉचीज थ्योरम का। कॉचीज थ्योरम बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें एक ही चीज़ है, यही फॉर्मूला है। जब पॉइंट्स इनसाइड होते हैं तो वो फॉर्मूला है, जब आउटसाइड होता है तो आउटसाइड वाला तो क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं एग्जाम में आपको, जल्दी हार्डली कभी पूछता ही नहीं, मतलब मैक्सिमम। लेकिन एक इनसाइड एक आउटसाइड, ये वाला सबसे कॉमन है कि 6 या 8 मार्क्स के लिए आपको पूछता है। अगर ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो 5 मार्क्स का आपका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। अगर ऑफलाइन एग्जाम हुआ तो क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 20, 3 20, 4 20, 5 20, 6 20। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहेगा, रेस्ट 2 to 6 में से कोई भी और 3 अटेम्प्ट करना है। तो उसमें 6 6 8 रहता है कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 2 में 6 मार्क्स ए रहता है, 6 मार्क्स बी रहता है और 8 मार्क्स सी रहता है। तो ये जो पार्ट पढ़ रहे हैं ये वाला 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। आप कोई भी ईयर का अगर पेपर निकाल के देखोगे तो कम से कम, अगर शायद नहीं पूछा है जब जो मतलब जिस एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए, उधर 6 मार्क्स का तो कंपल्शन में पूछा ही गया है। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट इज दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये पार्ट अगर आप कर लेते हो then definitely you can perform very easily for all the parts। क्योंकि जब दोनों इनसाइड हैं तब तो एकदम इजी पार्ट है। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखोगे रिकॉर्डेड लेक्चर में तो वो बहुत इजी है। यहाँ पे देखोगे एक इनसाइड आउटसाइड, इसमें पहले तो फैक्टर करना है आपको, इक्वेशन फैक्टर करने के बाद आपको क्या करना है,
फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको पॉइंट्स प्रॉपर रख के सेंटर प्रॉपर देखना है एंड फिर इनसाइड आउटसाइड आपको डिफाइन करना है. So if anyone having any doubts, till now 42 responses are accepted. Waiting for more. I'm just writing one question. अगर वक्त मिलेगा तो घर पे ट्राई करना. नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्राई करेंगे इसको. Evaluate close integral z into dz upon z minus 1 the whole square z minus 2 where C is the circle mod of z minus 2 is equal to 0.5. सबसे पहले सेंटर देखोगे तो 2,0 है क्योंकि I वाला पार्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस ही नहीं है. रेडियस 0.5 है. Radius is 0.5. Circle is whose center is 2,0 and radius is 0.5. पॉइंट्स देखोगे तो पॉइंट्स के बेस पे यहाँ पे न्यूमेरिकल्स सिंप्लीफाई होंगे एंड सॉल्व होंगे. ट्राई करना, अगर आता है तो ठीक, नहीं आता है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको सॉर्ट आउट करेंगे, इस सम को सॉल्व करेंगे. पॉइंट्स अगर देखोगे अच्छी तरह से तो यहाँ पे आपको पॉइंट z माइनस 1 दी होल स्क्वायर आपको एक बार देगा z इक्वल टू z माइनस 2, तो एक तो मिल जाएगा z इक्वल टू 2, तो z इक्वल टू 2 मिलेगा तो वो 2,0 रहेगा. तो 2,0 अगर देखोगे तो इनसाइड आएगा, और एक यहाँ पे देखोगे z माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक बार तो आपको 0 देगा और एक बार आपको 1 देगा, तो 1,0 जब आप देखोगे तो लाइज आउटसाइड द सर्कल करने वाला है. मतलब इस पे जब आप रिजल्ट फाइंड आउट करोगे तो ये 0 आपको मिलेगा, मतलब आउटसाइड चले जाएगा, ये इनसाइड मिलेगा. आउटसाइड ये जा रहा है, इनसाइड ये जा रहा है, मतलब आप अल्टीमेटली अब समझ जाओ कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है आपको अल्टीमेटली. तो z इक्वल टू 2 पे वैल्यू आपको निकालना है, तो जब सिंप्लीफाई करोगे 2 पाई आई इंटू, तो ये ब्रैकेट नहीं देगा नीचे, सिर्फ z अपॉन z माइनस 1 दी होल स्क्वायर, फिर z इक्वल टू आप 2 रख दोगे तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली 2 माइनस 1 दी होल स्क्वायर, ऊपर भी आप 2 रखोगे तो 2 टू जा, फाइनली इसका आंसर जो है वो 4 पाई आई आएगा. 4 पाई आई ये आंसर उसका आता है. तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है. अगर ये क्वेश्चन जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत मतलब बहुत इजी. इसका सर्कल अगर आप देखोगे तो इसका सर्कल बहुत इजीली आप बना सकते हो, बहुत इजीली सर्कल बनेगा. सेंटर क्या बोला है 2,0, 2,0, ये आपका सर्कल है, सेंटर है. सो दिस विल बिकम, यहाँ पे आप अगर अच्छी तरह से देखोगे तो इट विल बिकम, यहाँ पे पॉइंट 1 को देते हैं, यहाँ पे पॉइंट आपका 2 हो गया, यहाँ पे आप अच्छी तरह से आओगे एंड ऑल, और अगर यहाँ पे आप
थोड़ा सा और आगे आओगे तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बेसिस पे आप क्रिएट कर दिए हो इस पार्ट को, तो ये 0,0. सो दिस इज योर बेसिकली अ सर्कल. अब जैसे z इक्वल टू 2, तो 2,0, तो ये तो इनसाइड द सर्कल है, ये पॉइंट पे तो आ रहा है रिजल्ट. z-1 करोगे तो z-1 दी होल स्क्वायर इक्वल टू 0. स्क्वेयरिंग हटा दो तो z-1 इक्वल टू क्या मिलेगा, 0. तो z इक्वल टू क्या मिलेगा, 1. तो यहाँ पे अगर अल्टीमेटली आप देखोगे तो एक मिलेगा 1,0, मतलब 1 और 0 मिल रहा है पॉइंट्स. 2 मिला यहाँ पे, z इक्वल टू 2, मतलब रियल वैल्यू मिल गया, इमेजिनरी है नहीं, मतलब वो 0 है. तो यहाँ पे 1,0, तो 1,0 अगर देखोगे तो 1,0 तो एक्स एक्सिस पे 1 इधर आ रहा है और 0, तो वो हो ही नहीं सकता है पॉसिबिलिटी. तो ये पॉइंट आपका आउटसाइड दी सर्कल जा रहा है, ये पॉइंट इनसाइड दी सर्कल आ रहा है. यहाँ पे फैक्टराइज करना नहीं है, कुछ करना नहीं है. z इंटू डी जेड अपॉन, जब आप जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन हमने किया था, ये वाला पार्ट वाला सॉल्यूशन, हाँ ऐसा लिख के ऐसा लिखोगे, जब z अपॉन z-1 दी होल स्क्वायर इंटू z-2, तो z-2 निकाल दोगे और यहाँ पे आएगा z अपॉन z-1 दी होल स्क्वायर और z इक्वल टू 2 रख दोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली रिजल्ट आपको 4πi मिल जाएगा. नाउ जस्ट डोंट लेफ्ट, आई एम जस्ट टेकिंग फ्रॉम माय अटेंडेंस. यस, शिवांग त्रिवेदी, यू हैव एनी डाउट? Okay, fine. Okay, so I'm just taking the attendance, final attendance, then you can leave once I will let you know.